So hello guys, good evening. Welcome back to Markdarshan. So guys, today we have it's a group discussion number 7. So the topic for today's group discussion is ethanol blended petrol. The topic for today's group discussion is ethanol blended petrol. Are you clear about the topic? Okay. So I will be giving you 5 minutes to think. It's 9:28. Sharp at 9:33, we will be starting the group discussion. Okay. In entire group discussion, your video should not be off, and whoever want to speak, take the use of raise your hand feature which is in Zoom. Raise your hand feature का इस्तेमाल करिए. ग्रुप डिस्कशन को ग्रुप डिस्कशन की तरह रहने देना, फाइट नहीं करना, सभी लोगों को अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करने का. बताइए श्रवण. ओके, ज्वाइन. फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, ज्वाइन. यू आल्सो ज्वाइन. So the topic for today's group discussion is ethanol blended petrol. Ethanol blended petrol. Do not interrupt anyone, okay? सबको अपने पॉइंट बोलने देना, उसके बाद में अपने पॉइंट स्टार्ट करना. Okay, so guys, we can start the discussion.
renew- uh, 30% by 2030. Government had started a initiative to mix the ethanol with the petrol to reduce the emission and reduce the impact on climate change. And the government is also committed to the conference of parties to reduce carbon footprint by 0% by 2017. So to achieve this goal, government has taken this step, and further open this discussion to the group. Continue, please continue. I completely agree to what Toran just said. Uh, Government is definitely striving forward in taking this initiative ahead. What technically changes on blending, I would like to address this fact. Like upon blending of ethanol, the octane number increases, and it increases the anti-knocking tendency of any engine. So it consumes the same amount of fuel but reduces the emissions. Secondly, as Toran said, I completely agree. He said it's environmentally friendly. But looking at the applicability of this ethanol blended petrol, it is not very popular in India at this very moment. It's popular in France, Japan, and Germany at this moment, and but the future for this ethanol blended petrol is definitely bright. I wanted to add a point that ethanol blended petrol is not popular in India, uh, but in place of this, the EV vehicles are more getting popular in India. People are choosing EV vehicles more than this because it is efficient, cost efficient, and also the emission factor is here zero. So that's why it is more uh, good, environmentally good than the uh, ethanol blended petrol. I would like to add some points here. India currently commercially 10% ethanol petrol is available, and countries like USA they are using 15% ethanol blended petrol. It can enhance the green fuel economy because there are lesser emissions by using this fuel, and it will also benefit the ethanol making industries also because it will increase the commercial value of ethanol. So it will make less dependency on the petrol also. So need to focus more on research and development uh, how to make more percentage of ethanol in petrol. I also want to add some points about ethanol blending. As all of my colleagues have mentioned that in ethanol blending has not its future in India, but according to recent news, I am from Bihar. The government of India wants to build various factories as ethanol comes from the corn, which is uh, which is produced from the rice. So there are various setup built by different industrialists, which are direct investment comes from the PR. And the main reason behind the ethanol blending is that they reduce carbon monoxide emission by improving air quality. So I like to add to the point. IOCL has also taken initiative to implement this plan with the help of the government. So it is not and by this the carbon footprint also reduces. So for the environment, it's very beneficial, and increase from 20% to 100% in the petrol. So that's from my Points.
as some of my colleagues already said that it is environment friendly and friendly, and it will make the petrol cheaper, and which will easily accessible to the people. I So agree with ethanol your is point basically that it is a ethanol very is sustainable. okay. It is I will a very continue. Ethanol is produced from the first generation from three. It is three types of first generation, second, and third generation. First generation ethanol is produced from the rice crops, sugar cane, and etc. And all these are very water consuming crops, and which require huge water. And if we produce ethanol from the first generation, then there will be certainly water crisis, and also will be competing with the food shortage. So it should be produced from the second generation, because second generation we produce ethanol from the crop residues and the wooden waste. So in this way we can make the ethanol production more efficient, and also reduce the uh, wastage. Adding to that, I would like to say that ISC, according to a recent study done by ISC Bangalore, means if we blend ethanol with petrol, it can reduce the dangerous carbon monoxide emissions, the greenhouse gas, by even 30 to 50%, and the other harmful hydrocarbon emissions by 20%. And also the last year our honorable Prime Minister had rolled out means like 20% ethanol blended petrol in 11 states, and they are and the government's goal is to blend means 20% ethanol with petrol by 2030. That's I think I want to correct you, it is 30% by 2030. One of the chemical that is chlorine, it is produced using residues of sugarcane using the fermentation process. So the other byproduct of it is ethanol. It is also used in this with this petrol, so that it won't go as a waste. So I agree Ethanol with blended all petrol of you is not guys. popular in India. Not popular in India. The main reason is that the people, the common people, like the people of the village, they know very less about it, and we can say that they know anything about it. So government should have to take some steps so that the local people especially, they can get to know about the ethanol blended petrol, as it has various advantages. Like as my colleagues had said, that it has a means it is a environment friendly, and it is somewhat efficient than normal petrol. So government should take some steps so that to educate the common people, as many people in India right now doesn't know more about it. Building upon Nikhil's points, I believe government should strive for like incorporating the technologies incorporated in various foreign countries by signing an MOU with them, which basically emphasizes on exchange of the technology as well as the skilled persons, so that the country's um, skills, the people working in this sector also get upskilled, and we get to indigenously design such technologies. Also, I believe one of our colleagues was trying to speak up, but due to her network issues, she couldn't speak up. So I would like to invite Suni Kumari to just suggest her points. Yeah. So I want to
One more advantage one can add is that by blending the ethanol with petrol, it becomes a renewable form of energy. So the quantity of pure petrol needed will be managed by the blending with the ethanol. Also, current government itself is investing through different public sector undertakings and also encouraging private sectors by providing some of subsidiaries on this project. I think mixing with 100% ethanol, it will be not efficient because the same power output, more ethanol is required. And for producing the ethanol, I as already mentioned that we are competing with the food shortage, so it will be create the food crisis and the water shortage. So infrastructure should be developed in the such way that most efficient way. And also we have to do the little bit of mixing with the petrol too. We can't solely depends on 100% ethanol. Hello, sir. Am I audible, everyone? Yes, Mukul, you're audible. I think we can end up. Yes, sir. Let's wait for sir. We will join. Okay. Guys, you speak na. I have not stopped the. मैंने conclusion के लिए बोला ही नहीं. आप करो. I was listening, guys. You continue your discussion, guys. Guys, am I audible to you? Hello. Yes, 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 sir, you are audible. Yes, sir. Please continue your discussion. Yes. I think we also need to focus on more efficient ways to produce ethanol and increase the production of ethanol so that it is the goal to achieve to that much more percentage of ethanol can be fulfilled. And the current government also means in order to popularize this need to means find ways to make it competitive in with terms of like other alternative fuels like CNG, hybrid CNG means like and means means with automobile companies with going for CNG or hybrid CNG and means with other kind of fuels. I To make it believe we are competitive. deviating from the topic, Srapan. We are deviating from the topic. In addition to what my colleagues said, I believe ethanol blending, blended petrol can be manufactured by various ways. We definitely need to look at the various processes through which it can be done. Like we can involve multiple forms of catalysts, or we can aggravate the rate of reaction, or we can think along these lines basically to maximize our profit while producing the ethanol blended petrol. Okay, anybody like to add points? No? Conclude then. Guys, anybody like to add on the points? If not, you can conclude. With everyone's permission, I would like to take this opportunity to conclude this group discussion we just had.
So we were presented with the topic of ethanol blended petrol. We started the discussion by appreciating the reduction of emissions by incorporation of ethanol blended petrol in our lives. And we also looked at the impact it had on climate change and the reduction of carbon footprint. We looked at the possible implications of blending ethanol with petrol, which are the increase of the octane number and the increase in the anti-knock tendency, which is definitely a good sign. Apart from this, ethanol blended petrol is a source of renewable energy, and it's definitely a cleaner source of fuel compared to other sources of energy. As someone mentioned, like there are 3 different generations of ethanol production. Like the first generation being very water consuming, which we should avoid while production of ethanol blended petrol. Also, we discussed about the exchange of technology with other foreign countries which are already using the ethanol blended petrol and how we can benefit from it. Lastly, we touched upon the various ways of manufacturing ethanol blended. I believe I have covered all the points, but Yes, you have mentioned all the points, but example of mine which was from Bihar, you can also add. okay, I missed that. गाइस अब मेरे को बताओ थोड़ा, आप लोग ये बताइए, आप लोग को टॉपिक क्लियर नहीं था क्या? सर जैसे कि ये टॉपिक है ना सर, ऐसे ऐसे टॉपिक आ जाए सर, पता ही ना हो ज्यादा इसके बारे में। सर हाँ, वो पता ही नहीं चलता क्या बोले सर, मतलब इतना ही पता था मेरे को तो कि सर 20% ब्लेंड किया है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सस्टेनेबिलिटी है, मतलब कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है। सर ये सर पॉइंट के मतलब क्या बोले सर, पता ही नहीं चल रहा मेरे को तो। मैं हम्म, मैं इसीलिए किसी मेरे को आइडिया नहीं था सर कुछ। किसी ने तो भी मुझे मैसेज किया था सुबह में कि सर अगर कि हमें ऐसा कभी कोई सिनेरियो आ गया कि हमें कुछ पता ही नहीं है ग्रुप डिस्कशन में, तो हम क्या करें, है ना? तो हम क्या करें? तो मुझे ऐसे ही लगा कि लिटरली मतलब कि ये केमिकल बैकग्राउंड का टॉपिक नहीं है गाइस, ये तो नॉर्मल है ना, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है ना? यस सर, एक्चुअली ये रिसेंट में सर बहुत ज्यादा चल रहा है। इवन मेरा जो एनपीसीएल वाले सर ने इंटरव्यू लिया था, पूरा E20 में ले लिया था, अब मैं कुछ आंसर नहीं बता पाया था। हाँ, तो अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप लोग को टॉपिक के बारे में कुछ अवेयरनेस ही नहीं है करके, ओके, कि आप लोग कुछ बोल पाएंगे करके इसको। ठीक है, बट कोई बात नहीं, तो चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो गाइस, मिस्टेक्स, इसमें मिस्टेक्स किसने करी थोड़ा ये बताओ। आप लोग जो जज कर रहे थे, आप लोग ये बताइए मिस्टेक्स किसने करी इसमें, बताना। इंट्रोडक्शन बढ़िया से हुआ था या नहीं हुआ था? सर मेरे को इंट्रोडक्शन मतलब मैं अगर मुझे 10 में से देना हो तो मैं 6 नंबर दूंगा, मतलब एवरेज था। बट मैं उतना अच्छा इसलिए नहीं कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा फ्लुएंट नहीं हो पाया, मेरे को थोड़ा सा लगा। ठीक है, ब्रेक हो रहा था बीच में। और सर मैंने नाम भी लिखे हुए हैं जिसको जिसको मेरे सबसे बेस्ट लगा हिमांशु का, वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज इसने एकदम फैक्ट की बात की, ऑक्टेन नंबर बढ़ाएगा, एंटी नॉक प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। बट कंक्लूजन एक बार हो गया तो हो गया, मतलब जितना आई एम नॉट श्योर वैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा एक सर ने कहा था लास्ट टाइम। और क्या आशीष कुमार जो है उन्होंने ऐड भी कर दिया लास्ट में बिहार वाला पॉइंट। तो एक बार जब किसी ने कंक्लूड कर दिया तो फिर आपको कोई आंसर नहीं दे रहा है, जैसे मुझे भी सर ने बताया, नहीं तो वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा उल्टा। पहला तो ये रहा था हिमांशु का, मुझे काफी अच्छा लगा। और दूसरी बात हिमांशु का ये अच्छा लगा कि वो पॉजिटिव साइड थे तो पॉजिटिव साइड थे, उन्होंने नेगेटिव बात नहीं की, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा है निखिल गुप्ता एक है, ठीक है, तो उनका भी बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने पूरी नेगेटिव बात की। वो टॉपिक से डेविएट हो रहे थे निखिल, ठीक है। हाँ निखिल हाँ यस हाँ यस सर। निखिल ने क्या किए, निखिल ठीक है स्टार्टिंग में बोला गया, बट वो उन्होंने ईवी को लेके आ गया,
जब आपको yes sir सर मेरा भी एक्चुअली टॉपिक से मतलब मालूम डिविएट हो गया था। जब आपको ये चीज दे दी गई है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, तो आप लोग इसके ऊपर में बात करिए ना। ईवी को क्यों लेके आ गए आप लोग, क्यों लेकर आना है आप लोग को ईवी में? उसके बाद अभी हिमांशु ने पॉइंट्स भले अपने सही बोले, बट हिमांशु ने आई कंप्लीटली एग्री विथ तरुण बोला। तरुण भाई yes sir. आपको नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने +1 पॉइंट दे दिया तरुण को। मैंने कितने बार बोल चुका हूँ कि यू डू नॉट हैव टू टेक द नेम्स। तो कितने बार बोला मैंने कि आप लोग को नाम नहीं लेना है किसी भी कलीग का, ओके, वरना आप लोग अपना ही नुकसान करोगे। यस सर, ये भी मैंने पॉइंट लिखा था हिमांशु का, लेकिन मैंने बगल से लिखा तो बोलना भूल गया मैं। और बताओ गाइस, और किसका बढ़िया था? और सर हम्म, एक सर और बताता हूँ मैं आपको, फैक्ट्स बेस पे किस कारण वो बहुत सस्टेनेबल है, तो ये भी एक पॉइंट मुझे बट वो लास्ट में उन्होंने गड़बड़ कंक्लूजन के बाद भी एक ऐड कर दिया। और रवि रवि करके है सर एक, है ना, तो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, उन्होंने जितना भी बोला है सब नीचे पढ़ के बोला है। सारे के सारे टाइम उन्होंने नीचे पढ़ते रहा, उन्होंने सामने देख के बोला ही नहीं, तो वो तो पूरा गड़बड़ कर दिया उन्होंने। आई कॉन्टेक्ट। हाँ सर, वो पूरे टाइम नीचे देखते रहे बोल। और राशि का मुझे पॉइंट सही लगा, क्योंकि वो बहुत रिसेंट है। IOCL ने अभी इथेनॉल 100 लॉन्च कर दिया है, एक्चुअली करना नहीं है, उनसे कर दिया है, अभी उनके वेबसाइट पे लिख भी गया है, आने लगा है वो, कि इंडिया का ये फर्स्ट इथेनॉल 100 जो आया हुआ है, लॉन्च तो वो भी पॉइंट लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है, वो जून महीने में ही लॉन्च हुआ है। यस सर, तो वो एक पॉइंट मैंने भी रिसेंट IOCL के लिए पढ़ा था, तो वो ध्यान था मेरे को। तोरन के पॉइंट्स भी मुझे मतलब लॉजिकल वाले जो पॉइंट्स थे, शुगर केन राइस जो उन्होंने बोला, वाटर कंज्यूमिंग, वो भी ठीक मुझे लगा। वो पॉइंट सही थे। तो हाँ, पॉइंट सही थे। बस सर मैंने इतने लोगों का नोटिस किया है, बाकी से तो देख लीजिए। ठीक है, और किसने नोटिस किया? यस, देखो सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ आप लोग, ये कहाँ गए आपके इनका नाम क्या है, बताता हूँ मैं कौन थे। राहुल कुमार नायक, आप कहाँ हो? पहले आप आओ इधर। आप ये बताओ, आपने पॉइंट क्यों नहीं बोला? कहाँ पे हो आप? दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ सर। कहाँ पे हो आप? दिख नहीं रहे हो आप, मुझे वीडियो ऑन करो। हाँ, आपने पॉइंट क्यों नहीं बोला, पहले ये बताओ। सर कुछ दिमाग में आया नहीं सर सडनली। दिमाग में आ नहीं रहा था सडनली? अरे कुछ भी बोलना है, यस नहीं सर। भी आता तो भी बोलना है, दूसरों के पॉइंट्स लेके ही बोलना है, उसी को रिफ्रेश करना है। इसलिए कितने बार बोला कि इन ग्रुप डिस्कशन लिसनिंग इज एन आर्ट, लिसनिंग दिस स्किल्स विल ओनली गेट यू क्वालिफाई। यस सर। दूसरों जो भी पॉइंट बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि तोरण ने कहा था कि राइस से प्रोडक्शन होता है, शुगरकेन से प्रोडक्शन होता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का। इसी को तोड़ मरोड़ के बोल सकते थे आप, बोल सकते थे यार, एक पॉइंट तो कभी बोल सकते हो कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कॉस्ट इफेक्टिव है, इसको हम लोग व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं करके। यस सर। देखो ऐसे केसेस में क्या होता है बताता हूँ, जब आप लोग को कुछ पता नहीं है तो उस केसेस में क्या करना है, आप लोग को जो भी हल्के फुल्के जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक, आइदर उनको एक बार में सबसे पहले बोल दो, ओके, कि ये ऐसा ऐसा है करके, ओके, ठीक है। उसके बाद जब बाकी के लोग आपके बोलेंगे, ओके, ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों को नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, हाँ सर। उन्हीं पॉइंट्स को रिफ्रेश करके आप बोलिए, ओके। ओके सर। तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलो थोड़ा सा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में देख लेते, क्या होता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, है ना हम लोग। बट मैंने देखा मतलब आप लोग कुछ मतलब ऐसा कर रहे, ऐसा जीडी करा है कि आपको कुछ पता, इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है करके। फाइन, तो देखो गाइस, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल क्या होता है। सबसे पहले आपको एक मिक्सचर होता है विच कंटेनिंग इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल विच इज इथाइल अल्कोहल एंड पेट्रोल। कॉमन ब्लेंड्स इंक्लूड 10% ethanol, 90% petrol, and 20% ethanol and 80% petrol, ओके। अब हम लोग इसको ये ब्लेंडिंग क्यों करते हैं? बिकॉज द प्राइमरी गोल इज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ये पॉइंट तो सभी को पता है,
कि क्या है मकसद, फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना, लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना। ये किसने कहा था? मनीषा ने कहा था, है ना, कार्बन फुटप्रिंट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं करके। टू प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? तो देखो गाइस, पहला है एनवायरमेंटल इंपैक्ट। सभी को पता है कि इथेनॉल जो है वो क्लीनर बर्निंग फ्यूल है, विच कैन रिड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड पर्टिकुलर मैटर विच इज पीएम, ओके, एंड अदर पोल्यूटेंट्स कंपेयर टू प्योर पेट्रोल। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो बाय रिड्यूसिंग द रिलायंस on imported oil, countries can enhance their energy security. Economic benefits: the use of ethanol can support the agricultural sector as it is often derived from the crops like sugarcane, corn or other biomass. अब देखो, जैसे इसने कहा था तोरण ने, तो तोरण ने क्या कहा था कि वहां से आप लोग का जो भी फॉर एग्जांपल जो भी आपका इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बनता है, ये कहाँ से बनता है? ये आपका राइस से बनता है, शुगर केन से बनता है। तो आप लोगों ने कोई पॉइंट इसी को रिफ्रेश करके आप लोग ये पॉइंट रख सकते थे कि इससे हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में रेवेन्यू बढ़ेगा। ओके, रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका जॉब सिक्योरिटी, जॉब इंक्रीमेंट होगी, जॉब्स इंक्रीमेंट होगी, है ना? बोल सकते थे। यस सर। इसी को कहते हैं रिप्लेस करना। और ये इसी एनालिटिकल थिंकिंग के पार्ट कि आप कितने जल्दी सोच पा रहे हो। ओके, उसके बाद एथेनॉल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, मेकिंग इट मोर सस्टेनेबल ऑप्शन देन फॉसिल फ्यूल। बहुत बेसिक था, मेरे को तो लग रहा था अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अब कोई अगर कोई कॉन्स में है, ठीक है, कोई कॉन्स में रहता तो आप लोग ये कह सकते थे कि अब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के वजह से आप लोग जानते होंगे कि जो व्हीकल के इंजन्स होते हैं, व्हीकल के इंजन्स पे इंपैक्ट हो रहा है, पता है आप लोग को? इनकी जो लाइफ है वो रिड्यूस हो रही है। ओके, यस सर, कोरोजन हो रहा है। हाँ, कोरोजन हो रहा है, एफिशिएंसी उतनी इंप्रूव नहीं हो रही है। ये चीज आप बिल्कुल कह सकते थे। तो ओल्डर और जो पुराने, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पहले के जो व्हीकल्स थे, है ना, एक मिनट, मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहा है, मतलब पुराने, आई मीन टू से अभी जो 2020 के पहले वाले जो व्हीकल्स थे, है ना, उनका जो इंजन आता, उनका जो इंजन आता था, वो इंजन अभी के जो फ्यूल है इससे कंपेटेबल नहीं है। ओके, तो उन इंजन्स में क्या हो रहा है? लीडिंग टू कोरोजन और रिड्यूस परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रही है। ओके, तो ये एक आपका चैलेंज था। दूसरा, फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम फूड क्रॉप्स लाइक कॉर्न कैन लीड टू इंक्रीज फूड प्राइसेस एंड रेस एथिकल कंसर्न्स। अब अगर हम सभी चीज ये भी देख सकते हो आप लोग, अगर मान लीजिए कोई भी फूड है आपका, अगर वो फूड जैसे कि कॉर्न से बन रहा है, तो वहां पे अगर कॉर्न अगर भारी मात्रा में यूज कर रहे हैं हम लोग, तो फूड के प्राइसेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, एंड सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स रिक्वायर मॉडिफिकेशन व्हिच कैन बी कॉस्टली। ओके, नाउ गाइस, आप लोग को ये भी पता है कि जैसे हमारा जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये किस में ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट होता है ना? हाँ बट हाँ, बट आपका जो ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, ये किस में ट्रांसफर होता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा कैसे ट्रांसफर सर होता मे बी ऐसा कोई मटेरियल है जो कोरोजन की टेंडेंसी कम हो, ऐसे कोई मटेरियल एल्यूमिनियम का हो सकता है, एल्यूमिनियम को कोरोजन की टेंडेंसी बहुत कम होती है, है? तो मे बी। बट अगर हम लोग एल्यूमिनियम को यूज करते तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा वो, बताओ? नो सर, फिर वो महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। हाँ, तो उसी में कहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स रिक्वायर मॉडिफिकेशन व्हिच कैन बी कॉस्टली। ओके, नाउ अब किसी ने कहा था कि कार्बन एमिशन के बारे में। ओके, तो देख सकते हो गाइस, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते थे, ठीक है, ये पॉइंट तो किसी को पता भी नहीं होगा, है ना, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में आप कह सकते थे कि इंडिया इज पुशिंग फॉर 820 by 2025 टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। सो दिस वाज द पॉइंट गिवन बाय मनीषा। ओके, फाइन। अब फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है? तो फ्यूचर आउटलुक में क्या क्या है? तो R&D पे वर्क करना। ओके, सब्सिडीज, अब सब्सिडीज मिलती है क्या इसमें? सब्सिडीज इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, है ना, तभी तो यूसेज होगा, विच कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अभी हम लोग आप लोग देख सकते हैं, एलपीजी, जो भी एलपीजी लगाता है उन्हें सब्सिडी मिलती है ना?
तो इसको भी कह सकते थे आपकी सब्सिडरी मिलती है करके। ओके, उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पब्लिक को अवेयरनेस ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बिकेगा ही नहीं। ये वाला जो भी है आपका फ्यूल, ये फ्यूल आपका क्या सेल ही नहीं हो पाएगा। और कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में क्या होगा, while ethanol blended petrol offers several environmental and economic benefits, it is not without its challenges। इसमें दोनों पॉइंट रखने हैं, चैलेंजेस भी है और एक सेवरल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है। A balanced approach considering technological, economical and ethical aspect is necessary for its successful adoption। ओके गाइस, तो आई होप आप लोग को अब तो क्लियर हो गया होगा टॉपिक। और ये गाइस मैं आप अश्योर कर सकता हूँ कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा इस साल। ओके, आई कैन अश्योर दिस पॉइंट। ठीक, ये वाला आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि पिछले साल ग्रुप डिस्कशन में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था कि जो रिपीट हुआ था करके, वो हर दिन नया टॉपिक लेके आ रहे थे, हर दिन नया। एचपीसीएल में तो ऐसा था कि एचपीसीएल में पता चल गया था, उन लोग का एक ही था एक्सपांशन के ऊपर में, बिजनेस एक्सपांशन, बस उसी के ऊपर में वो लोग एचपीसीएल वाले अपना ग्रुप टास्क करवा रहे थे। ये देखो, ये फ्रॉम आशीष कुमार टू एवरीवन, ये पीडीएफ शेयर कर दीजिए। मैं सभी को सभी पीडीएफ मिली ना? यस सर। यस सर बताओ फिर, सारे के सारे पीडीएफ शेयर कर दिए मैंने। क्या मयंक ने इसके पहले ग्रिड जीडी लिया था, वो भी पीडीएफ शेयर करी थी, सभी तो शेयर किया है। ओके, ताकि आप लोग देखो। इस मैं क्षितिज से थोड़ा पूछना चाहूंगा। क्षितिज, आप थोड़ा सा, आपको बोलने की जरूरत है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। आर यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल और यू No, बिकम क्वाइट नर्वस? no, sir. Actually, I have problem to say it in English fluently. तो यू कैन स्पीक इन हिंदी एज वेल। बीच में ऐसे मतलब बीच में हिंदी में बोल सकते हैं। स्टार्टिंग ही हिंदी से करिए ना। बस ध्यान रखिएगा कि आपके ग्रुप में कोई साउथ वाला व्यक्ति ना हो, बस भगवान से दुआ करिएगा ये। बट जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप कंटिन्यू करिए अपना। ओके, बट मोस्टली वहां पे तो मतलब लगभग सब इंग्लिश ही यूज करते हैं सभी लोग। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे हिंदी होता है। भले बच्चा यहाँ पे बोलता है, यहाँ से सोच के जाता है कि मैं हिंदी बोलूंगा हिंदी बोलूंगा, तो वहां पे हो जाता है ना, तो इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना चालू कर देता है। हाँ, यस सर। अभी तो मैं मतलब इंग्लिश में ही ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे इसमें मुझे भी पॉइंट मतलब उतने पता नहीं थे, तो मैंने एक दो ही बोले, वो रिन्यूएबल वाला और कॉस्ट इफेक्टिव वाला। तो गाइस ठीक है, क्या कह रहे हैं सर, कैन रिपीटिंग पॉइंट्स लीड्स टू डिडक्शन ऑफ मार्क्स? रिपीटिंग पॉइंट्स does not lead to deduction of marks, but that won't give the marks as well, marks also. Okay, you have to rephrase that point. Rephrasing the point is very important. Okay, you can say I would like to add on the point of my colleague. Okay, I would like to add on the point of what my colleague said. तो ये चीजें है गाइस, और किसी का डाउट है तो बताइए। हाँ सर, तो जैसे कि इज इट नेसेसरी? Am I audible? एक मिनट। यस गाइस, नेटवर्क कनेक्शन मेरा बहुत प्रॉब्लम है।